لا إله إلا الله لا إله إلا الله tawhid.com إلا الله لا إله إلا वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए। मुमताज उलमा कराम की तकारीर, दर्स कुरान हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी जखीरा, सिरते बातिला से मुनाजरे और बहुत कुछ। إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون
وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تبارك وتعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي ومماتي خير لكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. قابل صد احترام میرے معزز اور میرے مکرم علماء کرام، بزرگان دین، میرے عزیز ساتھیوں، اور خصوصاً اس وقت یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جتنے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں وہ مجھ سے عمر میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، ہر اعتبار سے مجھ سے بہت آگے ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ یہ حضرات یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ مجھے بھی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بلکہ آپ کی مسجد تو اتنی خوش نصیب مسجد ہے کہ اس مسجد میں جو عالم ربانی فیض سبحانی حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب دامت برکاتہم رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اگر ان علماء کی ہم قدر کریں، ان بزرگوں کی قدر کریں، یہ حضرات صاحب دل ہے، ان کے پاس وہ دل ہے جو ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہمارا بدن اور ہمارا دل اور ہمارا جسم ان مبارک جسموں کے ساتھ، ان مبارک دلوں کے ساتھ جڑے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی علماء کی بہت قدر کرنا چاہیے میرا عزیز دوستو، بہت قدر کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العقائد میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کبھی کبھی کسی مردے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ بھائی، جو قبرستان ہے اس میں بہت سی قبریں ایسی ہوتی ہے جس میں مردوں کو عذاب ہوتا ہے۔ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کبھی کبھی مردوں کو عذاب ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے کوئی عالم گزر جاتا ہے جس کے سینے میں قرآن کریم ہے، کوئی عالم گزر جاتا ہے جس کے سینے میں احادیث نبویہ ہے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا عالم یا میری امت کا متعلم یا میری امت کا معلم جب وہاں سے گزر جاتا ہے، اللہ آسمان پر کہتے ہیں 40 سال کے لیے عذاب کو میں نے دور کر دیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر 40 سال کے بعد کیا ہوگا؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 40 سال کے بعد کیا ہوگا؟ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کے بعد کیا ہوگا اس کا مجھے خدا نے کچھ بتایا نہیں، لیکن انداز یہ ہے کہ خدا ایک مرتبہ معاف کرتا ہے پھر کبھی پکڑ نہیں کرتا ہے۔ میرا عزیز دوستو، آپ کی مسجد تو بڑی مبارک مسجد ہے۔ جب سے ساؤتھ افریقہ میں آنا ہوا اور اس مسجد میں آنا ہوتا ہے تو علماء کرام کی ایک بڑی جماعت نظر آتی ہے، اور ہمارے مشفق مربی حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم نظر آتے ہیں۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے اور اللہ ان کے سائے کو ہم سب کے سر پر تاج قائم و دائم فرمائے۔ میرا عزیز دوستو، یہ تو خیر ایک ابتدائی مقدمہ تھا۔ اب میں کیا بات آپ کے سامنے کروں، میں خود اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں۔ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ میں نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا، اور ویسے ملکوں کا سفر کرنا میرے بھائیوں کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات تو ہے کہ کوئی کعبے کو دیکھ لے جائے، اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہو سکتا۔ بہت سے ملکوں کا سفر کیا، لیکن آج مجھے یہ کہنا پڑا
کہ अफ्रीका वाले जिस तरह कारोबार करते हैं शायद कोई नहीं करता। इसलिए कि मैं जब बम्बई में था और वहां से जब जोहानिसबर्ग उतरा तो हमारे महमूद भाई की दावत पर मैं यहाँ हाजिर हुआ, तो जोहानिसबर्ग पर कुछ हजरात को उन्होंने मेरे इस्तेकबाल के लिए भेजा। वो इस्तेकबाल भी कैसा इस्तेकबाल था कि मुलाकात करते ही कहा कि मौलाना 3 हिफाजत की तावीज बना देना। एयरपोर्ट पर तो मैंने 3 तावीजें बनाई। सब जोहानिसबर्ग से जब मैं डरबन पहुंचा तो डरबन में अभी उतरा नहीं, अभी तो सही माने में कहो कि सांस भी नहीं लिया कि एक साहब अंदर आए और कहा कि बाहर कासिम भाई खड़े हुए पूछ रहे कि आपकी आवाज बराबर है या नहीं। और कासिम भाई जब से आए हैं, जब से मेरी मुलाकात हुई है, ये सिर्फ मेरी आवाज और मेरी तकरीर के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। अब तक ये भी नहीं पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। तो मेरे भाइयों, मेरे अफ्रीका के भाई बड़े चालाक मालूम होते हैं। खैर अजीज दोस्तों, इस वक्त हम यहाँ जमा हुए हैं, मैं भी थका हुआ हूँ। जैसे मौलाना शबीर साहब मेरे खास दोस्त हैं, इन्होंने अभी कहा कि आज ही सफर से आया हूँ, मैं भी थका हूँ, कुछ बातें आपके सामने करूंगा। अल्लाह मुझे और हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो हालात हुए और खुसूसन गुजरात में जो हालात हुए और खुसूसन अहमदाबाद में और बड़ौदा में और गोधरा में और नापा में और खेड़ा में जो भी हालात हुए, इस पर तो इंशाअल्लाह हम कभी बाद में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक बात आपको बताता चलूं कि एक सवाल जो हमारे जहन में बहुत खटक रहा है, शायद आपके जहन में कम खटकता होगा, हमारे हिंदुस्तान के भाइयों में ज्यादा खटका कि इतना सब कुछ होने के बाद आखिर अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। इतना सब कुछ होने के बाद, और मेरे भाई और खुदा की कसम, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, जो कुछ हुआ है शायद मैं बयान करूं तो मेरा बयान उस हद तक नहीं पहुंचेगा। बस अल्लाह ताला मुसलमान के जान माल आबरू की हिफाजत फरमाए। वरना मेरे भाइयों, जो कुछ मुसलमानों के साथ किया गया, इन सब हालात को देखने के बाद अब एक सवाल आता है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। और मैं आपको सही कहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में कुछ भाई ने ऐसे ऐसे जुमले कहे कि शायद उस जुमले की वजह से कुफ्र का फतवा आ जाता है। उन्होंने ये कहा कि इतने सारे हालात हो गए, मासूम मासूम बच्चों को जलाया गया, औरतों की इज्जत पर हमला किया गया, फिर भी अल्लाह की मदद नहीं आती। क्या अल्लाह को नजर नहीं आता? मेरे अजीज दोस्तों, मैं ये इसलिए आपके सामने बहुत खोलकर बयान करता हूँ कि जब मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा कि ये हालात क्यों आए, तो फिर हमें अपने अंदर भी देखना होगा कि शायद जो गलतियां उनकी थी और उनकी वजह से ये हालात आए, वो गलतियां हम भी तो कर रहे हैं, कहीं हम पर वो हालात ना आ जाए। इसलिए कि मेरे भाइयों, जब भी हालात आते हैं तो कुरान करीम कहता है फजअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा वमा खल्फहा। जब भी हालात आते हैं तो कुरान करीम कहता है ये एक सबक है, ये एक लेसन है उन लोगों के लिए जो गुजर गए और उन लोगों के लिए जो आने वाले हैं। तो मेरा अजीज दोस्तों, बस ये बात बार बार जहन में हर एक की आती कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। मैं एक साफ सुथरा आपको जवाब दूं कि मेरे भाइयों, ये आप देख रहे हैं कि ट्यूबलाइट यहाँ जल रही है, मैं देख रहे हैं ना ट्यूबलाइट जल रही है आपकी मस्जिद में। ये ट्यूबलाइट कैसे जली? आपने स्विच ऑन किया और ट्यूबलाइट जल गई, तो यही हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, ये तो बच्चा बच्चा जानता ना भाई। ये किसी की कार दरमियान में है, ND 50702, बराए करम अपनी कार को हटा दे। जी मेरे अजीज दोस्तों, ये जो ट्यूबलाइट आप देख रहे हैं जो जल रही है, ये आपने स्विच ऑन किया और ट्यूबलाइट जल गई। भाई दरमियान में कोई टाइम लगा? भाई आपने स्विच ऑन किया और ट्यूबलाइट जल गई, दरमियान में कोई टाइम लगा? नहीं, टाइम नहीं लगा। मेरे भाइयों, हमारे अकाबिरीन ने बयान किया है कि मुसलमान का हाल भी पहले ऐसा होता था कि यहाँ हाथ उठाता था और वहाँ अल्लाह की मदद आती थी। जैसे स्विच के ऑन करने में और लाइट के जलने में एक सेकंड नहीं, इसी तरह यहाँ हाथ उठता था और वहाँ फैसले हो जाते थे। और मेरे भाई, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ?
भाई जब ग़ज़वा बदर था उस वक्त मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और सामने काफिरों का कितना बड़ा लश्कर था, कितना बड़ा लश्कर था। और आपको मालूम है कि हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में एक कोने में खड़े हैं। मेरे भाइयों, वो कोना भी हमने देखा जहां हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं, हाथ उठाकर दुआ मांग रहे। मांगते मांगते कहते हैं, या रब्बी इन हलकता हाज़िहिल इसाबा फला तौबत बादो। कहते अल्लाह, अगर ये छोटी सी जमात को तूने बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया, तो अल्लाह इसके बाद फिर तेरी इबादत कौन करेगा। और मेरे भाइयों, लिखा है कि हमारे नबी ने जब दुआ मांगना शुरू की, हाथ उठता रहा, यहाँ तक कि सहाबा फरमाते हमें बगल की सफेदी नजर आने लगी। अल्लाह के रसूल के हाथ ऊपर उठे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, हमारी जमात बहुत कलील जमात है, इनके पास कुछ नहीं है। यहाँ तक कि हमारे नबी ने फरमाया, ए अल्लाह, अक्सर सहाबा के पास तलवार भी नहीं है, किसी के पास लकड़ी है, किसी के पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, सिर्फ सतर छुपाया हुआ कपड़ा है। बस हमारे नबी दुआ मांग रहे कि आसमान पर फैसला होता, आसमान पर फैसला हो गया। आसमान पर फैसला हो गया। मेरे प्यारे नबी, अब हाथ नीचे रखो, हमने तुम्हारी फतह का फैसला कर लिया है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ नीचे रखा, लेकिन एक खटका था कि हम कितने हैं, 313। एक खटका था ना, कितने हैं, 313। अल्लाह ताला ने फौरन दूसरी आयत उतारी, कम मिन फिअतिन कलीला गलबत फिअतन कसीरा बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ने आसमान से आयत करीमा उतारी, ए मेरे नबी, फिक्र की क्या जरूरत है, तुम 313 हो, लेकिन सामने कितना ही बड़ा लश्कर हो, लेकिन उनका पैदा करने वाला तो तुम्हारे साथ है। सामने कितना ही बड़ा लश्कर हो, लेकिन उसका पैदा करने वाला तुम्हारे साथ है, फिक्र की कोई बात नहीं। तो मेरे अजीज दोस्तों, मुसलमानों का एक जमाने में हाल ये था, आपने शायद नाम सुना होगा एक सहाबी का जिनका नाम है हजरत शुराहबील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या नाम है? हजरत शुराहबील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लिखा है कि जिस वक्त वो कबीला बनु काब पर हमला करने के लिए पहुंचे, सारा कबीला काफिर था, सबने अपने आप को एक किले में बंद कर लिया और अंदर खाने पीने का मुकम्मल इंतजाम था और मजबूत किला था, मजबूत पहाड़ था। हजरत शुराहबील कहते हैं, बाहर निकल आओ और हमारे साथ सुलह करो, बाहर निकल आओ, कलमा पढ़ लो, बाहर निकल आओ, हमारे साथ जिज़िये का फैसला करो। वो अंदर से काफिरीन कहते हैं कि हमें आपके साथ सुलह करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास 1 साल का खुराक रखा हुआ है, हमारे पास 1 साल का खुराक रखा हुआ, हम इत्मीनान से खाते रहेंगे, हम भी खाएंगे, हमारी औरतें भी खाएंगी, हमारे बच्चे भी खाएंगे। हजरत शुराहबील ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, बाहर आ जाओ, कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, 1 साल तक आप इंतजार करो, हम बाहर निकलेंगे, उसके बाद जो होगा वो देखेंगे, लेकिन अभी 1 साल तक आपको बाहर खड़े होना पड़ेगा। हजरत शुराहबील ने जब अपने आने वाले लश्कर को देखा तो हर एक का चेहरा गिरा हुआ, सब अपनी जुबान से ये कहना चाहते, 1 साल तक खड़े होकर क्या करेंगे। मेरे भाइयों, वो हजरत शुराहबील के पास जो कलमा था वही कलमा हमारे पास है। रिवायत में लिखा है, फरफा इस्बुआहु, लिखा अपनी उंगली को उठाया, उस किले को बताया और कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो किला पूरा का पूरा जमीन में धस गया। मेरे अजीज दोस्तों, वही कलमा तो हम भी पढ़ते हैं ना, कि कोई और कलमा हमारे पास, वही कलमा है ना हमारे पास। तो मेरे भाइयों, मैं ये बात शुरू कर रहा था कि हम स्विच ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट जल जाती है, बल्ब जल जाते हैं, दरमियान में कोई वक्फा नहीं होता। इसी तरह एक उम्मती जब हाथ उठाता था तो अल्लाह ताला की यहाँ फैसले होते थे। लेकिन मेरे अफ्रीका के भाइयों, तो ये अगर दरमियान में जो वायर है अगर वो कट जाए तो क्या होगा? आप स्विच ऑन करोगे तो ट्यूबलाइट जलेगी, तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, रात से दूसरी सुबह, 24 घंटे आप स्विच ऑन करो, ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो, बल्कि गुस्से में उसे मारो स्विच पर। लेकिन मेरे भाइयों बताओ, न पंखा चलेगा, न ट्यूबलाइट जलेगी, न बल्ब जलेगा। क्यों भाई, क्या हो गया? तो क्या हो गया? वही स्विच है कि जब उसको खोलते थे तो 1 सेकंड के बगैर
लाइट जलना शुरू हो जाती। आज वही स्विच 24 घंटे आपने खोला बंद किया, लेकिन पंखे में न हरकत आई न लाइट में हरकत आई। क्यों? इसलिए कि कोई भी कहेगा, एक छोटा बच्चा भी कहेगा, दरमियान का कनेक्शन टूट चुका है, दरमियान का वायर टूट चुका है। मेरे भाई, आज हमारा और खुदा का वायर टूट चुका है। मेरे भाई, आज हमारा और खुदा का वायर टूट चुका। इसीलिए मेरे भाइयों, एक बात समझ लेना, हमने नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ी, बहुत अच्छा किया, अल्लाह और पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे हिंदुस्तान में न जाने कितनी मस्जिदों में कुनूत नाज़िला पढ़ी गई, सूरह यासीन के खत्म हुए, सूरह नूह के खत्म हुए, खत्म खाजगान हुआ। न जाने जिसने जो खत्म बताया, उम्मत ने तमाम खत्म को किया। कोई खत्म था पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, कोई खत्म था हजरत जुनैद बगदादी का, कोई खत्म था हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। मेरे भाइयों, रोजाना कोई न कोई खत्म की खबर आती और मस्जिदों में वो खत्म शुरू हो जाता। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, एक बात समझ लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा जा रहे थे, तो एक मुरीद उनके बिल्कुल उनके पीछे पीछे चलने लगे। यहाँ तक कि हजरत जुनैद का जहाँ कदम पड़ता, मुरीद भी अपना कदम वहीं रखते। फिर हजरत जुनैद का कदम आगे जहाँ पड़ता, वहाँ मुरीद भी अपना कदम रखते। हजरत जुनैद ने पीछे मुड़ा, पीछे मुड़कर पूछा कि क्या कर रहे हो? कहा हजरत आपकी इत्तिबा करता हूँ। क्या कहा? हजरत आपकी इत्तिबा। कहा कैसे इत्तिबा करते हो? कहा जहाँ आपका कदम है मुबारक, वहाँ मेरे गुनहगार का कदम, जहाँ आपका कदम है मुबारक, वहाँ मेरे गुनहगार का कदम। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, खुदा की कसम, तू मेरा मुत्तबे नहीं बन सकता जब तक कि जो अमल मैं करूँ वो अमल तू करने वाला बन जाए। मेरे भाइयों, आज हम सोचे कि जितना भी हम पढ़े, लेकिन असल जो चीज है वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार करना, वो हमने आज तक इख्तियार नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों, माफ करना मेरी बात अगर आपको बुरी लगे। आज इस वक्त हम लोगों के हालात जो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, सच बताना, हमारे यहाँ बहुत से प्रोग्राम बनते हैं, वो बनते नहीं बनते, हमारे घरों में बहुत से प्रोग्राम बनते, खास करके जब छुट्टियों का, वेकेशन का मौसम आए तो प्रोग्राम बनता नहीं बनता। बल्कि जब जैसे संडे तो सैटरडे नाइट से प्रोग्राम शुरू हो जाता, बल्कि फ्राइडे से प्रोग्राम शुरू हो जाता कि सैटरडे नाइट में ये करना वो करना, संडे को ये करना वो करना। मेरे भाइयों, हजारों प्रोग्राम हमारे बनते हैं। मेरे भाइयों, कभी दिन का प्रोग्राम बना, कभी रात में उठकर तहज्जुद पढ़ने का प्रोग्राम बना, कभी रात में उठकर अल्लाह के सामने रोने का प्रोग्राम बना। मेरे भाइयों, बना कभी प्रोग्राम। अब जैसे आजकल आपने देखा होगा कि फुटबॉल का बड़ा जोर चल रहा है, तो रात भर जागने का और टीवी देखने का ये प्रोग्राम तो अभी से बन गया होगा, तो बना नहीं बना। मेरा अजीज दोस्तों, मुझे असल एक बात आपको बताना है कि ये प्रोग्राम किसको कहते हैं और सहाबा कैसे बनाते थे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। रिवायत में लिखा है कि एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं आपको थोड़ी तफसील से रिवायत सुनाऊं। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मगरिब की नमाज पढ़ रहा था और मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे। अब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई, तो मगरिब की नमाज में पहली रकात में हमारे नबी ने ये सूरत पढ़ी। कौन सी आयत पढ़ी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, हे ईमान वालो, अल्लाह से माफी मांगो, अपने गुनाहों की माफी मांगो। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि पहली रकात में मेरे नबी ने यह आयत पढ़ी और मेरे नबी की हिचकियां बंद गई, मेरे नबी रोने लगे। तो कौन सी आयत? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, हे ईमान वालों, अपने गुनाहों की माफी मांगो। हजरत अबू ज़र फरमाते मेरे नबी नमाज में रोने लगे। हजरत अबू ज़र कहते हैं कि थोड़ी देर में मैंने देखा, मैं नमाज में था, पूरी मस्जिद रोने लगी। हजरत अबू ज़र कहते हैं खैर मगरिब की नमाज हो गई, लेकिन मेरा दिल कहने लगा कि जब नबी रोते हैं तो अबू ज़र तू कब रोएगा, जब नबी रोते हैं तो अबू ज़र तू कब रोएगा। हजरत अबू ज़र कहते हैं उसी वक्त मैंने फैसला किया कि आज रात जब सन्नाटा छाएगा तो मैं अकेला मस्जिद नबवी में जाऊंगा, कोई नहीं होगा, मैं रहूंगा, मेरा खुदा रहेगा, और इतना रोऊंगा, इतना रोऊंगा, इतना रोऊंगा कि मेरा खुदा मुझे माफ कर देगा। मेरा अजीज दोस्तों, ये प्रोग्राम कभी हमने बनाया, तो ये प्रोग्राम कभी हमने बनाया। और मैं आपसे पूछता हूं कि हजरत अबू ज़र से कौन सा गुनाह हो गया था, तो हजरत अबू ज़र से कौन सा गुनाह हो गया था?
تو حضرत ابو ذر نے کون سے نبی کے قانون کو توڑا تھا؟ کیا نبی کا چہرہ توڑا؟ کیا نبی کے لباس کو توڑا؟ کیا نبی کی سیرت کو توڑا؟ کیا ابو ذر نے کوئی ٹی وی کو دیکھا؟ کیا ابو ذر نے ناجائز چیز کو استعمال کیا؟ کیا ابو ذر نے کوئی حرام روٹی کو پیٹ میں اتارا؟ میرے بھائیوں کچھ نہیں تھا، بس خیال آیا کہ میرے نبی نماز پڑھتے پڑھتے رونے لگے تو ابو ذر تو کب روئے گا؟ میرے بھائیوں روایت میں لکھا ہے کہ رات کا سناٹا چھا گیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پروگرام بنا رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پروگرام بنا رہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتى مسجد النبویہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، داخل ہوئے، وہ توضا اور وضو کیا، وہ وضو کر کے اندر آئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور 2 رکعت نیت باندھی، سوچا کہ 2 رکعت نماز پڑھو پھر اللہ کے سامنے روؤں گا، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی ہے، بس نماز میں کسی کے رونے کی آواز کان میں آ رہی ہے۔ میرے بھائیو وہ اس زمانے کی مسجد تھی، کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، نہ راستے میں لائٹ تھی، نہ مسجد میں لائٹ تھی، نہ دریا بچھی ہوئی تھی، زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری نماز پڑھ رہے اور کان میں کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ روایت میں لکھا کہ حضرت ابو ذر نے نماز پوری کی اور پہلا جملہ کہا، ابو ذر تو ہار گیا، کوئی تیرے سے آگے بڑھ چکا ہے، ابو ذر تو ہار گیا، تیرے سے آگے کوئی بڑھ چکا ہے۔ میرے بھائی کتنا پیارا کمپٹیشن تھا، ہمارا بھی تو کمپٹیشن ہوتا ہے نا۔ اس نے یہ مرسیڈیز کار لایا اور بڑا ماڈل کی لایا، اب دیکھو میں کون سے ماڈل کی لاتا ہوں۔ میرے بھائی ہمارا یہ کمپٹیشن ہوتا ہے، اس کے یہاں شادی ہوئی نا تو اس نے اتنے رینڈ خرچ کیے ہیں، اتنے ہزاروں رینڈ خرچ کیے، لیکن میرے یہاں شادی ہے تو دیکھو میں کتنے ہزاروں رینڈ، بلکہ ابھی تو ہمارے یہاں شادیوں کا ایسا مسئلہ ہو گیا کہ بھائی کارڈ چھپتا نہیں سکتا ہماری شادیوں میں۔ آپ کے افریقہ میں چھپتا ہے نا، اور یہ حال ہو گیا، ایک تو چھاپنا ایک مستقل مسئلہ ہے کہ یہ کارڈ کا چھاپنا کیسا، اور دوسری طرف رونا اس کا ہے کہ جس کو کارڈ نہیں ملتا اس کے پیٹ میں بھی دکھتا ہے، پیٹ میں دکھتا نہیں دکھتا، بلکہ غصے میں کہتا ہے کہ اس نے مجھے نہیں بلایا، اب اگر میں مرا تو وہ میرے جنازے میں نہیں، وہ مرا تو میں اس کے جنازے میں نہیں۔ تو میرے بھائیو یہ سوچو نا آخر تو کون سی ہستی تھی کہ تجھے نہیں بلایا تو اتنا خراب لگا۔ آپ کو معلوم ہوگا نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اللہ کے رسول کی مجلس میں نہیں آئے، 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آئے۔ 3 دن کے بعد اللہ کے رسول چل رہے، دیکھا سامنے سے حضرت جابر آ رہے، پوچھا کہ جابر 3 دن سے میری مجلس میں نہیں، کیا بات ہے؟ حضرت جابر نے گردن جھکائی اور شرماتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول 3 دن پہلے میرے نکاح ہوئے ہیں، 3 دن پہلے میرے۔ تو حضرت جابر کے نکاح میں کارڈ ہمارے نبی کو پہنچا اور ہمارے نبی کو تکلیف ہوئی، کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جابر تم نے نکاح کیے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے نکاح کیے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا بارک اللہ بینکما وجمع بینکما بالخیر، اللہ تم دونوں میں برکت دے اور بڑی بھلائی کے ساتھ تمہیں رکھے۔ میرے بھائیوں اس وقت روئے زمین پر ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں تھی، بلکہ قیامت تک ہمارے نبی سے بڑھ کر نہ کوئی ہستی آئی اور نہ کوئی ہستی آئے گی، لیکن اتنی بڑی ہستی کو نکاح میں نہ بلایا گیا، لیکن کوئی تکلیف، اور ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہمیں نہ بلایا جائے تو بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دے گئے۔ خیر میرے عزیز دوستوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کمپٹیشن میں میں ہار گیا، کوئی مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ حضرت ابو ذر نے نماز مکمل کی اور سوچا کہ جہاں سے رونے کی آواز آ رہی اسی طرف میں چلوں گا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں چلتا گیا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں جب اس آواز کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ سجدے میں گرے ہوئے حضرت بلال رو رہے ہیں، سجدے میں گرے ہوئے حضرت بلال رو رہے۔ اور میرے بھائی ابو ذر غفاری نے کتنی پیاری بات کہی، کہا کہ بلال رو رہے تھے، میں قریب گیا کہ بلال کیوں رو رہے؟ تو میرے بھائی بلال کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری کہتے خدا کی قسم بلال سجدے میں کہہ رہے تھے اللہ میں تو حبشہ کا رہنے والا، اللہ میں تو غلام ہوں، تو نے کیسے مجھے ہدایت دے دی؟ تجھے میری کون سی چیز پسند آئی کہ اللہ تو نے مجھے ہدایت دے دی؟ میرے بھائی اس پر بلال رو رہے، کون؟ حضرت بلال۔ میرے بھائی بلال کا کون سا گناہ تھا؟ بلال کا کون سا گناہ تھا؟ ارے بلال تو وہ صحابی ہے کہ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ بلال میں نے خواب میں تجھے دیکھا ہے کہ تیرے قدم کے آواز جنت میں آ رہی ہے۔ میرے بھائیو بلال تو وہ صحابی ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی آئی تھی، حضرت بلال کی بیوی جو تھی نا
حضرت بلال نے کوئی حدیث بیان کی ہوگی تو بیوی نے کہہ دیا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اور بیوی کہہ دیتی ہے نا، کتنا ہی بڑا باہر بہت بڑا امام ہوئے، فقیہ ہوئے، محدث ہوئے، مقرر ہوئے، ہے نا مولانا شبیر صاحب، بیوی کہہ دیتی ہے، اور اس کے سامنے پھر بڑے بڑے مفتی بھی گھٹنا ٹیک دیتے ہیں۔ اسی لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ شادی ہو گئی نا، شادی ہو جائے نا تو ہندوستان والے تو کہتے ہیں شوہر، تو کیا کہتے ہیں، اور آپ لوگ کہتے ہو انگلش زبان میں ہسبینڈ، یعنی کیا، ہنسنا بند۔ میرے بھائیو سمجھے، اس کا مطلب نکلا کہ آپ لوگ زیادہ ڈرتے ہو۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی نا، کیسے صحابی ایک مرتبہ حدیث بیان کی، بیوی نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، بس حضرت بلال کو برداشت نہیں ہوا کہ نبی کی بات بتاتا ہوں اور میری بیوی مجھے جھوٹا کہتی ہے، سیدھے دوڑے گئے اللہ کے رسول کے پاس گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا بلال؟ بلال کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی ایک بات میں نے سنائی، میری بیوی نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو۔ روایت میں لکھا، حالانکہ میاں بیوی کا معاملہ تھا، لیکن روایت میں لکھا کہ اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس عورت کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، آئندہ میرے بلال کو جھوٹا مت کہنا۔ ہمارے نبی کہہ رہے اس عورت کو کہہ رہے آئندہ میرے بلال کو جھوٹا مت کہنا، اس لیے کہ زمین پر جب بھی کوئی بلال کو جھوٹا کہتا ہے اللہ کا عرش حرکت کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائی اتنا اونچا مقام، اور یہ بھی سجدے میں رو رہے ہیں، سجدے میں رو رہے ہیں نا، وہ روایت بھول مت جانا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو آواز سنی تو آواز کس کی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اب حضرت ابو ذر قریب میں بیٹھ گئے، حضرت بلال جب دعا سے فارغ ہو گئے تو دیکھا کہ ابو ذر میرے سامنے، پوچھا، حضرت بلال نے پوچھا ابو ذر یہ آدھی رات کو تم میرے پاس کیا کام ہے؟ تو ابو ذر نے کتنا پیارا جواب دیا کہ بلال جس کام سے تم آئے ہو اسی کام سے میں بھی آیا ہوں، جس خدا کو راضی کرنے تم آئے ہو اسی خدا کو راضی کرنے میں بھی آیا۔ میرے بھائی دل کو ہلا دینے والی روایت ہے، لکھا ہے کہ حضرت بلال نے کہا کہ ٹھیک ہے جب راضی ہی کرنا ہے تو میں دعا مانگوں گا، تم آمین کہنا، پھر تم دعا مانگنا، میں آمین کہوں گا۔ میرے بھائی ہمارے دو دوستوں نے کبھی یہ پروگرام بنایا کہ میں دعا مانگوں تو آمین کہے، تو دعا مانگے میں آمین کہوں۔ غیبت کرنے کے تو بہت پروگرام بنتے، اللہ معاف فرمائے۔ اور کہاں غیبت ہوتی معلوم؟ مسجد میں نماز پڑھا، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، اس کے بعد کہتا کہ تنے خبر پہلا ہے ہوں کی تنے خبر کی نہیں خبر، اب وہ بھی یہ تھوڑا انجانا بنے گا، کیا کہے گا نہیں میں نے تو کہیں نہیں خبر، اب یہ کہے گا پوری بات پورے محلے کی غیبت کرے گا، اس کے بعد کہے گا کہ آواز سارا نے مہاراج وچ میں رکھ دیا کونے بگانے کہتے نہیں تو۔ اور یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد میں، جبکہ ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت سمجھتے ہیں نا، بیک بائٹنگ، الغیبۃ اشد من الزنا، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا اس کا گناہ زیادہ ہے اور زنا کرنا اس کا گناہ کم ہے۔ علماء نے لکھا زنا کرنے والا جانتا ہے میں گناہ کرتا ہوں، ایک نہ ایک دن توبہ کرے گا، غیبت کرنے والا جانتا ہی نہیں گناہ کرتا تو توبہ کب کرے گا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں دونوں پیارے صحابی جمع ہو گئے۔ بلال کہہ رہے میں دعا مانگوں گا تم آمین کہنا، ابو ذر کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر ابو ذر کہتے ہیں میں دعا مانگوں گا تم آمین کہنا، بس حضرت بلال نے دعا مانگی۔ میرے بھائیوں روایت میں یہ نہیں ملتا کہ بلال نے کیا مانگا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا بلال نے جو مانگا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، اور ابو ذر آمین آمین کہتے رہے۔ پھر حضرت ابو ذر نے مانگنا شروع کیا۔ میرے بھائیو اصل بات مجھے یہ بتانا، حضرت ابو ذر نے مانگنا شروع کیا، دونوں روئے جا رہے، لیکن میرے بھائیو لکھا ہے ابو ذر نے ایک دعا مانگی، بلال نے آمین نہیں کہا، ما قال آمین، حضرت بلال نے آمین نہیں کہا۔ میرے بھائیو کون سی دعا ہوگی؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہم مانگے اللہ سب کو قبول فرمائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دعا مانگی، میرے بھائی دونوں روئے جا رہے، حضرت ابو ذر دعا مانگتے اور بلال نے آمین نہیں کہا۔ وہ کون سی دعا آج بھی حدیث کی کتاب میں موجود ہے؟ کیا دعا مانگی؟ اللہم انا نسألک مرافقت نبینا محمد فی اعلی درجۃ الجنۃ جنۃ الخلد۔ میرے بھائیو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اگرچہ بلال نے آمین نہیں کہا لیکن اللہ ہم سب کو آمین کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی، اللہم انا نسألک
का मुराफक़त नबीना मुहम्मद फी आला दरजतिल जन्नति जन्नतिल खुल्द। हजरत अबू बकर ने दुआ मांगी कि अल्लाह क़यामत में जहाँ तेरे नबी को रखना मुझे भी वही रखना। ए अल्लाह हौज़े कौसर पर जहाँ तेरे नबी को रखना मुझे भी वही रखना। ए अल्लाह जन्नत में जहाँ तेरे नबी को रखना मुझे भी वही रखना। बिलाल ने आमीन नहीं कहा। रिवायत में लिखा है सदा सानिया, हजरत अबू बकर ने दूसरी मर्तबा यही दुआ मांगी, बिलाल ने आमीन नहीं कहा। माँ काला आमीन। हजरत अबू बकर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तीसरी मर्तबा यह दुआ मांगी, बिलाल ने आमीन नहीं कहा। हजरत अबू बकर हैरान हो गए कि बिलाल तुम आमीन नहीं कहते, अमा अम्मन का या बिलाल, ए बिलाल क्या तुम आमीन नहीं कहते? बिलाल का कोई जवाब नहीं। हजरत अबू बकर आगे बढ़े तो देखा कि बिलाल बेहोश गिरे हैं, देखा कि बिलाल तो बेहोश गिरे पड़े हैं। हजरत अबू बकर हैरान हो गए, थोड़ा उठाया, झंझोड़ा, पूछा कि बिलाल क्या हो गया? बिलाल ने कहा कि अबू बकर कैसी दुआ मांगी तुमने, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? क्या कह रहे? ए अबू बकर तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसे आ गई? तुम ये दुआ मांगते हो कि जहाँ नबी रहे वहाँ तुम रहोगे, कयामत का दिन होगा जहाँ नबी होंगे वहाँ तुम होंगे, हौज़े कौसर पर जहाँ नबी होंगे वहाँ तुम होंगे, और जन्नत में जहाँ नबी होंगे वहाँ तुम होंगे। ए अबू बकर कौन सा अमल तुमने किया कि तुम नबी के साथ खड़े होना चाहते हो? मेरे भाई और रिवायत में लिखा फ़तमल मला अबू बकर, भाई रिवायत के अल्फाज फ़तमल मला अबू बकर। अबू बकर ऐसा करते हैं कहने लगे कि बिलाल तुमने बिल्कुल सच कहा, अबू बकर के पास क्या चीज है कि नबी के साथ खड़ा होगा? मेरे भाई उस वक्त अबू बकर ने कहा था एक जुमला कि अबू बकर के पास क्या चीज है? ये तो कबीले ग़िफ़ार का एक कुत्ता था जिसको नबी के हाथ से हिदायत नसीब हुई है। मेरे भाई अबू बकर ऐसा करते हैं और तड़पते क्या दुआ मांगी? दुआ मांगी कि अल्लाह मैंने जो मांगा है इस पर मुझे माफ कर देना, अल्लाह मैंने जो मांगा अब कभी नहीं मांगूंगा, इस पर मुझे माफ कर देना। मेरे भाई ने लिखा कि दोनों साहब यही दुआ मांगते हैं कि अल्लाह जो मांगा है अब हम वापस कभी नहीं मांगेंगे। लिखा है इज़रा नूरा, अचानक दोनों ने अपने सामने एक नूर देखा, अचानक दोनों ने अपने सामने नूर देखा। बिलाल अबू बकर को कहते देखो कुछ नूर नजर आता, जबकि मस्जिद नबवी में सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ। बिलाल अबू बकर को कहते, अबू बकर बिलाल को कहते कि हाँ मैं भी नूर देख रहा। दोनों नूर की तरफ बढ़े, फरमाते हैं फइज़ा हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल आ रहे। ये दोनों सहाबी कहते हैं कि खुदा की कसम, ये दोनों सहाबी कहते हैं कि मस्जिद नबवी में अंधेरा था, इतना अंधेरा था। अबू बकर कहते न मैं बिलाल को देखता न बिलाल मुझे देखता, लेकिन अब तो हमें मस्जिद नबवी की दीवार भी नजर आने लगी। मेरे भाई और कैसा मुबारक चेहरा, भाई हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा होगा? इसलिए मेरे अजीज दोस्तों मैं अफ्रीका में आता हूँ, वाकईतन बहुत खुशी होती है। हमारे बहुत से भाइयों के चेहरे पर दाढ़ी है, लेकिन अभी भी जिन लोगों के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है वो इस बात को समझ ले कि नबी के चेहरे से अच्छा कोई चेहरा नहीं हो सकता। तो नबी के चेहरे से कोई अच्छा चेहरा नहीं हो सकता। खुदा की कसम मेरे भाइयों कैसा चेहरा। इंशाअल्लाह किसी दिन हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि हमारे नबी की आंख मुबारक कैसी थी, कान मुबारक कैसा था, हमारे नबी की जुबान मुबारक कैसी थी। लेकिन मेरे भाइयों सब गुफ्तगू करने के बाद वही बात कहना पड़ेगी जो हजरत हस्सान ने कहा था। तो हजरत हस्सान ने एक बात कही थी, मैंने आपको शायद पहले सुनाया था। हजरत हस्सान ने एक बात कही थी, कहीं बाहर कही थी, नबी को खबर मिली, नबी ने हजरत हस्सान को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि हस्सान वो कौन सा शेर तुमने पढ़ा? हजरत हस्सान ने वो शेर पढ़ा। नबी ने कहा कि हस्सान इस शेर पर अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी। मेरे भाइयों नबी के चेहरे से बढ़कर क्या चेहरा होगा? हजरत हस्सान ने क्या कहा था? सब कुछ देखने के बाद हजरत हस्सान ने आखिर में कह दिया वअहसन बिकलम तरक़त ऐनी वअजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। हजरत हस्सान ने कहा था मेरे प्यारे नबी बहुत से हसीनों को देखा लेकिन आपसे बढ़कर किसी खूबसूरत को नहीं देखा। और कहा बहुत सी माओं ने अपने बच्चों को जना होगा लेकिन बीबी आमीना ने जिस चांद को जना वैसे चांद को हमने नहीं देखा। और फिर क्या कहा? ए मेरे प्यारे नबी आपके सर मुबारक से लेकर पांव मुबारक तक हमें तो कोई खोट ही नजर नहीं आती, ऐसा लगता है कि आपकी मर्जी के मुताबिक खुदा ने आपको पैदा कर दिया है। मेरा अजीज दोस्तों हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर सही में कोई चेहरा नहीं हो सकता। अल्लाह वो चेहरे से मोहब्बत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों कितना प्यारा चेहरा, कितना प्यारा चेहरा, इतना प्यारा चेहरा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हमेशा हमारे नबी के साथ रहते, 4 साल नबी की खिदमत में रहे। अबू हुरैरा कितने साल?
4 साल नबी की खिदमत में रहे और हमेशा कहते मैं तो इंतजार करता हूँ कि मेरे नबी मुस्कुरा देवे, मैं तो इंतजार करता हूँ मेरे नबी मुस्कुरा देवे। किसी ने पूछा क्या अबू हुरैरा क्यों इंतजार करते हो कि नबी मुस्कुराए? क्या फरमाया? अबू हुरैरा ने फरमाया तुम्हें नजर आता हो या ना आता हो, लेकिन खुदा की कसम मेरे नबी जब मुस्कुराते हैं तो आपके दांत मुबारक की चमक सामने दीवार पर नजर आती है, आपके दांत मुबारक की चमक सामने दीवार पर नजर आती। मेरे भाइयों घर की बात नहीं कहता, तरतीब व तरहीब में ये रिवायत, तबरानी में ये रिवायत और अल्लामा कबरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को लिखा। मैं आपको रिवायत के अल्फाज सुनाओ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रअयतु वजह रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़हकु व सिनानुहु ततलालउ फ़ौक़ल जुदरान। मैंने अबू हुरैरा फरमाते मैंने अल्लाह के रसूल को मुस्कुराते हुए देखा, आपके दंदान मुबारक, आपके दांत मुबारक की चमक सामने दीवार पर नजर आया करती थी। मेरे भाइयों कितना प्यारा चेहरा होगा हमारे नबी का, कदर होगा कि नहीं होगा? कितना प्यारा चेहरा होगा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन अफसोस इस बात का है मेरे भाइयों कि आज हमको वो चेहरा अच्छा नहीं लगता है, नहीं अच्छा लगता ना। बहुत से हमारे जवानों को आपने देखा होगा, बल्कि माफ फरमाए बहुत से बूढ़ों को हमने देखा, आज वो बूढ़ा भी समझता है कि मैं ज्यादा खूबसूरत दिखता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा हो सकता है? चलो एक बात बताऊं, जब बात आ गई है तो बात बताऊं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है मिरकात में कि कब्र में 3 सवाल होंगे। तो ये तो आप सबको मालूम है। कितने सवाल होंगे? तो कितने सवाल होंगे? तो ये क्या बात है, कुछ आगे वालों ने ठेकेदारी ले ली और पीछे वाले से सुनते रहे, कुछ न कहे। हम तो हिंदुस्तान में बार बार लोगों के पास बुलवाते, इतना बुलवाते। इसमें 2 फायदे होते हैं। एक फायदा ये होता कि बार बार बुलवाने से मालूम हो जाता कि ये तकरीर बयान नहीं, ये एक सबक है जो मुझे भी याद करना है और आपको भी याद करना है। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब तक सामने से आवाज आती है ये होता है कि भाई सब जाग रहे, जब आवाज नहीं आती सिग्नल होता मौलाना कुर्सी छोड़ो जाओ जल्दी। तो आप लोग तो बहुत जल्दी जल्दी सिग्नल देना शुरू कर दिया आप लोगों ने। तो कब्र में कितने सवाल होंगे? और 3 सवाल अल्लाह ने खोल दिए, ओपन कि क्लोज। अगर कोई कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में अगर क्वेश्चन आउट हो जाए तो कॉलेज बदनाम हो जाती है, यूनिवर्सिटी बदनाम हो जाती है। बल्कि कहते हैं कि इसने रिश्वत दी होगी और सवाल तोड़े हैं, है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने जो सवाल पूछने उसको क्या कर दिया? क्यों? इसलिए कि अल्लाह चाहते हैं कि बंदे सवाल खोल दिया हो, अब मैं चाहता हूं कि तुझे माफ करूं, बस अब बहाना ढूंढता हूं, अगर तूने इस बहाने को पकड़ लिया तो तुझे माफ कर दूंगा। मेरे भाइयों वहां तो सारे सवाल खोले हुए। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों मैं एक रिवायत आपको सुनाता हूं, अभी नहीं कभी रात की तन्हाई में जब आंख खुल जाए ना तो थोड़ी देर के लिए सोचना, ये रिवायत उस वक्त सोचोगे तो कुछ अजब मंजर आपको नजर आएगा। रिवायत में आया है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा उक़बिर अल-मय्यित यातीहि मलकान अस्वदान अज़रक़ान युक़ालु अहदुहुमा अल-मुनकर व लिल-आख़िर अन-नकीर। हदीस पाक में आता जब किसी को कब्र में रखा जाता, मेरे भाइयों याद रखना हम सबको कब्र में जाना है, मुझे भी कब्र में जाना, चाहे कितना भी चीख चिल्ला कर बोलो मुझे भी कब्र में जाना है, और आप कितने भी लज्जत के साथ सुनो आपको भी कब्र में जाना। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों जब कब्र में जाएंगे उस वक्त मेरा और आपका क्या हाल होगा? यातीहि मलकान, 2 फरिश्ते आएंगे, अस्वदान जिनका बदन काला होगा, अज़रक़ान जिनकी आंखें नीली नीली होगी। एक फरिश्ते को कहा जाएगा मुनकर, दूसरे फरिश्ते को कहा जाएगा नकीर। और मेरे भाइयों लिखा है दोनों फरिश्ते आकर पहला सवाल पूछेंगे मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? तो पहला सवाल क्या होगा? मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? मेरे भाई हदीस पाक में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है क्योंकि अल्लाह 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 बहुत सुना इसलिए कह देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। पहले सवाल में पास, अल्लाह सबको पास कर देंगे। दूसरा सवाल होगा मा दीनुक, तेरा मजहब क्या है? तो चूंकि सब लोग उसको मुसलमान कहते थे, कह देगा दीन अल इस्लाम, मेरा मजहब इस्लाम, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन मेरे भाई सबसे मुश्किल और कड़ा तीसरा सवाल होगा, अल्लाह हम सबको पार कर देवे। तो तीसरा सवाल क्या होगा? तीसरा सवाल होगा मन हाज़ा रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम, मन हाज़ा रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम, कौन है वो नबी जो तुम्हारे दरमियान भेजे गए थे, क्या पहचानता है? मेरे भाई मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मैं बार बार आपको हवाला इसलिए देता हूँ कि आप समझ लो अच्छे तरीके से। लिखा है कि जब तीसरा सवाल होगा तो हमारी कब्र और अल्लाह के रसूल की कब्र के दरमियान के तमाम पर्दे उठा दिए जाएंगे।
میرے بھائیوں، ہم افریقہ میں مرے ہو یا انڈیا میں مرے ہو یا پاکستان میں مرے ہو، یہ میری قبر ہوگی اور تمام درمیان کے پردے اٹھا دیے جائیں گے، ایسا لگے گا یہ میری قبر ہے اور یہ ہمارے نبی کی قبر ہے. اور پھر اللہ پوچھیں گے من ھذا الرجل، کون ہے یہ نبی الذی بعث فیکم، جو تمہارے درمیان بھیجے گئے. میرے بھائیوں، لکھا ہے کہ ہم جواب دیں، اس لیے وہاں جواب دینا آسان تو ہوگا نہیں. ابھی ہم جواب دیں اس سے پہلے ہمارے نبی اپنا مبارک چہرہ قبر مبارک سے نکالیں گے. ہم جواب دیں اس سے پہلے ہمارے نبی اپنا مبارک چہرہ اپنی مبارک قبر سے نکالیں گے. اور لکھا ہے کہ ہماری طرف دیکھیں گے، وہ چہرہ اگر چہرے سے مل جائے گا، وہ چہرہ اگر چہرے سے مل جائے گا، نماز کا نور نظر آ جائے گا، زکوٰۃ کا نور نظر آ جائے گا، ساری چیزیں نظر آ جائے گی. میرے بھائیوں، لکھا ہے کہ ہم جواب دیں اس سے پہلے ہمارے نبی کہیں گے اللہ میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ مجھے پہچانتا ہے. کہ اللہ میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ مجھے پہچانتا. بس اب تیسرے جواب کا انتظار نہیں، روایت میں آیا تیسرے جواب کا انتظار نہیں، فوراً اعلان ہوگا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، فوراً اعلان ہوگا. کیا اعلان ہوگا؟ افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ. اعلان ہوگا یہ بندہ میرا ہے، جنت کا لباس اس کو بھیج دو، جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو. لیکن میرے بھائیو، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے، بڑا عجیب جملہ لکھا ہے کہ امت کے لیے سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ جب ہمارے نبی مبارک چہرے کو اپنی مبارک قبر سے نکالیں گے اور ہماری قبر کے اندر دیکھیں گے، اگر چہرہ چہرے سے نہیں ملے گا میرے بھائیوں، اور اگر چہرہ مل بھی گیا لیکن نمازیں نہیں ملی میرے بھائیوں، نمازیں مل گئی لیکن نبی کا عشق نہیں ملا میرے بھائیوں، تو اس وقت ہمارے نبی کہیں گے، غور سے دیکھیں گے اور اس کے بعد اللہ کو کہیں گے کہ اللہ میں اس کو نہیں پہچانتا، یہ مجھے نہیں پہچانتا، کہ اللہ میں اس کو نہیں پہچانتا، یہ مجھے نہیں پہچانتا. میرے بھائیو، اس وقت اعلان ہوگا افرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا لہ بابا الی النار. میری ماں بہن، افرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا لہ بابا الی النار. میری ماں بہنیں بھی سوچے آج کھلا چہرہ رکھ کر کیسے چلی جاتی ہے. اور ہمارے نبی کہیں گے نا، قبر میں جا کر کہیں گے کہ یہ جو میری امت کی اور شریعت کا کپڑا نہیں ہے. تو اعلان ہوگا کہ جہنم کا بچھونا بچھاؤ، جہنم کے کپڑے پہناؤ اور جہنم کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو. میرا عزیز دوستو، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ کچھ نہ ہو سکتا ہو، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو رکھے کہ قیامت میں کہے کہ نبی کچھ نہیں، تیرا مبارک چہرہ لے کر آیا ہوں. ارے میرے بھائیوں، کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ میرے بھائیوں، صحابہ نے بڑی بڑی تیاری کر لی آخر رکھی. کوئی صحابہ نے بڑی بڑی تیاری کر لی نا. ایک بات آپ کو بتاؤں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا نا. اسی مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. میرے بھائیوں، جب مدینے میں انتقال کی خبر آئی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے ابا کے انتقال کی خبر آئی، اس سے بڑھ کر میں نے مدینے میں غم کا کوئی دن نہیں دیکھا. اور میرے بھائیوں، جب نبی کو دفن کر کے صحابہ کرام آ رہے تھے، حضرت فاطمہ زور زور سے ایک ہی آواز دے رہی تھی کہ کس ہاتھوں سے تم نے میرے نبی کے اوپر مٹی کو ڈالا ہے، کیسے تم نے میرے نبی کے اوپر مٹی کو ڈالا. اور میرے بھائیوں، فاطمہ نے وہ جملہ کہا تھا، صبت علی المصائب لو صبت علی الایام لسرن لیالی. حضرت فاطمہ نے کہا کہ آج میرے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی ہے کہ اگر دن پر یہ مصیبت آتی تو یہ دن رات کی شکل میں بدل جاتا. میرا عزیز دوستو، جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، پورے مدینے میں غم تھا، لیکن ایک صحابی کامیاب ہو گئے میرے بھائیوں. اسی لیے ہمارے نبی نے کہا تھا کہ میرا جینا بھی اچھا ہے اور میرا جانا بھی اچھا ہے. ایک صحابی کامیاب ہو گئے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر آئی، اپنے باغ میں ہے، کھجور کے درخت پر ہے، کھجور توڑ رہے ہیں اور کان میں خبر آتی ہے ان النبی قد مات، خبر آتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. روایت میں لکھا ہے فضل قدم ہو، آپ کا قدم مبارک پھسل گیا. حضرت عبداللہ ابن زید کا قدم پھسل گیا اور قدم پھسلا اور سیدھے زمین پر گر پڑے. میرے بھائیوں، جب زمین پر گر پڑے، حضرت عبداللہ ابن زید کو چوٹ لگی ہوگی نہیں لگی ہوگی؟ تو ہاتھ میں چوٹ ہوگی، پاؤں میں چوٹ ہوگی، درخت سے گرے ہیں، لیکن کیا کیا حضرت عبداللہ ابن زید نے میرے بھائیوں وہ کام کیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے.
हमने कभी आज तक सोचा भी नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद ने वो काम किया कि दोनों हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह, इन आंखों से नबी को देखा करता था, अब नबी न रहे तो मुझे किसी को देखने की जरूरत भी नहीं। ए अल्लाह, मेरी आंख की रोशनी को तू छीन ले। फिर दुआ मांगते, अल्लाह, इन कानों से मेरे नबी की प्यारी प्यारी हदीसों को सुना करता था, अब नबी न रहे तो हदीस किसकी सुनूंगा। ए अल्लाह, मुझे कान की शनवाई की जरूरत नहीं। मेरे भाइयों, दुआ कबूल होती है, आंख की रोशनी भी खत्म, कान की शनवाई भी खत्म। और ये अब्दुल्ला बिन ज़ैद इसी तरह जब घर में जाते हैं तो बीवी भी सामने है, बच्चे भी सामने, सब रो रहे हैं कि आज बीवी कहती मेरा शोहर अंधा हो गया, मेरा शोहर आज बहरा हो गया, बच्चे कहते मेरा अब्बा नाबीना हो गए, मेरे अब्बा को सुनने की ताकत नहीं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला क्या कहते, बीवी अपना रोना रोए, बच्चा अपना रोना रोए, हजरत अब्दुल्ला क्या कहते कि मुझे कोई बात की फिक्र नहीं। जुबान तो चल गई ना, कह रहे मुझे कोई बात की फिक्र नहीं। कल कयामत का दिन होगा, मेरे नबी नूर के मिंबर पर होंगे। कल कयामत का दिन होगा, मेरे नबी नूर के मिंबर पर होंगे। और जब अब्दुल्ला वहां जाएगा तो पूछेंगे, मेरे नबी पूछेंगे अब्दुल्ला क्या लेकर आया। मेरे नबी पूछेंगे अब्दुल्ला क्या लेकर आया। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं उस वक्त मैं कह दूंगा कि मेरे नबी आपकी मोहब्बत में आंख और कान को कुर्बान करके आया हूँ, आपकी मोहब्बत में आंख और कान को कुर्बान करके आया। मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्ला तो जवाब दे देंगे, हम क्या जवाब देंगे, हम क्या जवाब देंगे। अगर हमारे नबी ने इतना पूछा कि मेरे उम्मती, मेरी शरीयत में क्या कसूर था कि तूने यहूदियों की शरीयत को पसंद कर लिया था, तो मेरे नबी कहेंगे ना, हमारे नबी कहेंगे मेरे चेहरे में क्या कमी थी, मेरे लिबास में क्या कमी थी, मेरे इमामे में क्या कमी थी। और हमारे नबी पूछेंगे कौन सी कमी तूने देखी थी कि तूने ईसाइयों की शरीयत को पकड़ा, तूने यहूदियों की शरीयत को पकड़ा और तुझे मेरी मस्जिद कभी नजर नहीं आई। मेरे अजीज दोस्तों, बात काफी आगे निकल गई। बात ये हो रही थी कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आए। भाई याद है ना आपको, हजरत अबू ज़र और हजरत बिलाल कहते हैं कि हमने नूर को देखा, हम आगे बढ़े तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मेरे भाइयों, अब सुनना, अल्लाह के रसूल आ गए, मस्जिद नबवी में उजाला हो गया, बिलाल भी रो रहे, अबू ज़र भी रो रहे, और हमारे नबी क्या कहते हैं, मुस्कुराए, फतबस्सम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और कहा कि बिलाल, अबू ज़र, आज रात तुम लोगों ने मुझे सोने नहीं दिया। क्या कहा, आज रात तुम दोनों ने मुझे सोने नहीं दिया। मेरे भाइयों, बिलाल और अबू ज़र का क्या हाल होगा, तड़प गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, हमने कुछ नहीं किया अल्लाह के रसूल। बिलाल कह रहे अल्लाह के रसूल, खुदा की कसम मैं तो दुआ मांग रहा था। अबू ज़र कहते मैं भी दुआ मांग रहा था, हमने न कोई शोर मचाया, न हमने आपको जगाया, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन हमारे नबी फिर मुस्कुराए, कहा कि बिलाल, अबू ज़र, तुम लोगों ने मुझे सोने नहीं दिया। जब दूसरी मर्तबा कहा तो बिलाल और अबू ज़र आगे बढ़े और कहा कि हमारे नबी, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन अगर हमारी वजह से तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर देना, हमारी वजह से तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर देना। मेरे भाइयों, हमारे नबी आगे बढ़े और क्या कहा कि बिलाल, अबू ज़र, मैं तो घर में सो रहा था, इत्मीनान से सो रहा था, जिब्राइल मेरे पास आए, जिब्राइल मेरे पास आए और कहा कि अल्लाह का हुक्म है, अभी उठो, मस्जिद में जाओ और बिलाल और अबू ज़र जो कह रहे उस पर आमीन कह दो। बिलाल और अबू ज़र जो कह रहे उस पर आमीन कह दो। बस उस वक्त हमारे नबी ने कहा कि अबू ज़र क्या कहते थे कहो, ताकि मैं आमीन कह दूं, खुदा का हुक्म पूरा हो जाए। मेरे भाइयों, लिखा है कि अबू ज़र आगे बढ़े, हमारे नबी थोड़े फासले पर खड़े, अबू ज़र आगे बढ़े और आगे बढ़े, जाकर हमारे नबी के सीने से चिपट गए और कहा कि मैं कुछ नहीं मांगता था, मैं तो आप ही को मांगता था, मैं कुछ नहीं मांगता, मैं तो आपको मांगता था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अबू ज़र, बिलाल, वादा करता हूँ कयामत के मरहले में जहाँ जहाँ मैं खड़ा रहूंगा, दाई तरफ बिलाल तुम्हें खड़ा रखूंगा, बाई तरफ अबू ज़र तुम्हें खड़ा कर दूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये भी तो कुछ मांगना था ना। और आज हम अपनी जिंदगी को देखें। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मैंने तो सोचा ये था कि रबीउल अव्वल के बारे में हम कुछ बात करें, लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, जो भी बात हम सुने, आज एक पहली नियत इंशाअल्लाह करें कि नबी के तरीके को अपना तरीका बनाएंगे, तो नबी के तरीके को अपना तरीका बनाएंगे, नबी के अखलाक को अपने अखलाक बनाएंगे, नबी की सीरत को अपनी सीरत बनाएंगे, नबी की सूरत को अपनी सूरत बनाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे मोहब्बत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई मोहब्बत ही नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बहुत मोहब्बत की। मेरे भाइयों, बहुत मोहब्बत की। बड़े बड़े गुनहगारों से हमारे नबी ने मोहब्बत की, बड़े बड़े गुनहगारों से हमारे नबी ने मोहब्बत की। आपको मालूम होगा कि मदीने पाक में जब एक सहाबी को लाया गया, तो मदीने पाक में जब एक सहाबी को लाया गया, हमारे नबी ने पूछा क्या मामला है, कहा कि चोरी की है, कहा कि चोरी की है। हमारे नबी की आंखें झुक गई। फिर हमारे नबी को पूछा गया आपका क्या फैसला है, कहा कि हाथ का काटना होगा, इसलिए कि ये फैसले में तो नबी भी बदल नहीं कर सकते। तो हाथ काटने का फैसला तो किसका फैसला है,
अल्लाह का। और अल्लाह के कानून को नबी बदल सकते? भाई सब कहो ना, अल्लाह के कानून को नबी बदल सकते? तो हम लोगों ने कैसे बदल दिया? तो अल्लाह का कानून था नबी का चेहरा, हमने वो कानून को तोड़ दिया। अल्लाह का कानून था फजर की नमाज पढ़ना। मेरे भाइयों, आज आप सच बताओ, ईशा की नमाज में, जोहर की नमाज में बहुत सारे जवान आ जाते हैं, फजर की नमाज में भाई तेरे पास गाड़ी है या नहीं है, तेरे पास खाने पीने के लिए सामान है या नहीं है, तेरे पास रहने के लिए बंगला है या नहीं है, तुझे किसी के सामने भीख मांगना पड़ता? तेरा हाथ, तेरे आंख, तेरा नाक, सब कुछ अल्लाह ने दिया, फिर तू फजर की नमाज में क्यों नहीं आया? तो फजर शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी अजीब बात लिखी है। मेरे भाइयों, बड़ों की बात बड़ी होती है। शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तालीफात में एक रिवायत लिखी है, लेकिन रिवायत से पहले एक बात लिखी है कि शैतान और नफ्स ये दो हमारे दुश्मन है। है ना दुश्मन? और कितने बड़े दुश्मन है? जिस वक्त फजर की अजान होती है ना, फजर की अजान होती है तो इसकी आंख खुल जाती है। भाई अल्लाह ताला मोमिन को उठाता है, अल्लाह मोमिन को उठाता है। भाई फजर के वक्त आंख खुल जाती है, लेकिन होता क्या मामला है? मामला क्या होता है? कहता अजान और जमात में आधे घंटे का टाइम है। हाँ, कितना टाइम है? आधे घंटे का। और 5 मिनट मेरे टॉयलेट वजू के लिए और 2 मिनट मेरी 2 रकात सुन्नत के लिए। मतलब है कि 7 मिनट और 3 मिनट तो गाड़ी में मैं पहुंच जाऊंगा, तो 10 मिनट में मस्जिद में पहुंच जाऊंगा, तो अभी 20 मिनट मेरे पास आराम करने के लिए। ये कहकर सो जाता है। वह सो जाता नहीं? सो जाता। तो ये नफ्स करता नहीं करता? ये नफ्स इतना खतरनाक है मेरे भाइयों, इतना खतरनाक है, ऐसी हमसे बातें करता है कि हमें लगता है इससे बढ़कर कोई दोस्त नहीं होगा, और कुरान कहता है इससे बढ़कर तेरा कोई दुश्मन नहीं होगा। और हमारे नबी ने कहा ना, आदा अदूवी का मा बैन जंबैन, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो तेरे पहलू के दरमियान में, वही है नफ्स। और वो क्या है? नफ्स। फिर क्या होता? फिर 10 मिनट के बाद आंख खुलती है, फिर कहता है कि अभी भी 10 मिनट बाकी है, तो अभी भी 10 मिनट में आराम कर सकता। मेरे भाई शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, ये नफ्स ऐसा धोखा देता है कि अब तीसरी मर्तबा खुदा नहीं उठाता। अब उस वक्त आंख खुलती है जब नमाज का वक्त निकल चुका है। अब क्या होता है सुनो, जब नमाज का वक्त निकल चुका, ये तो नफ्स ने खेला। भाई नफ्स ने हमारे साथ खेल खेला ना। अच्छा, शैतान क्या खेल खेलता है? लिखा है कि जब फजर की अजान होती है तो शैतान हरे के बिस्तर के पास पहुंच जाता। तो अजान होती है ना, फजर की अजान होती है, तो शैतान हरे के बिस्तर के पास पहुंच जाता और उसकी पीठ पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरता और कहता, नम नम या हबीबी, नम नम या हबीबी, अरे मेरे प्यारे सो जा, मेरे प्यारे सो जा। इसीलिए देखा होगा अजान होती है और कंबल के अंदर घुस के सोता है। तो क्या तो इलेक्ट्रिक कंबल शुरू हो गए और कंबल के अंदर घुसकर सोता। उसको समझना चाहिए मैं नहीं सोता, ये शैतान मुझे सुलाता। और क्या कहकर सुलाता? नम नम या हबीबी, मेरे प्यारे सो जा। मेरे भाइयों, जब वक्त निकल जाता है तो रिवायत में आता, इन्न शैतान यबूलु फी, शैतान उसके मुंह में पेशाब करके चला जाता है। भाई वक्त चला जाता तो शैतान उसके मुंह में पेशाब करके। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, शैतान मुंह में पेशाब करके चला जाता। इसका क्या मतलब? भाई ये मतलब नहीं कि सुबह में हम मुंह को चाटने लगे कि कुछ नमकीन, कुछ मिठास, कुछ कड़वाहट, क्या मालूम होती। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि शैतान कुफ्र के असरात अंदर छोड़ के चला जाता है। इन्न शैतान यबूलु फी, इसकी तफसीर की शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, कुफ्र के असरात अंदर छोड़ के चला जाता। इस पर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि एक दिन नमाज छोड़ा हो तो एक दिन कुफर का असर होगा, 2 दिन छोड़ा हो 2 दिन होगा, लेकिन मेरे भाई 1 महीने तक फजर नहीं करी तो क्या होगा? शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह लिखते क्या हाल होगा? लिखते आखिर में क्या हाल होगा? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। यह हाल होगा कि अल्लाह ताला कहेगा कि दुनिया तुझे मोमिन कैसी होगी, लेकिन मेरे यहाँ तेरा नाम काफिरों में लिखा जा चुका है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो मेरे अजीज दोस्तों, बात ये हो रही थी कि अल्लाह ताला ने कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को इख्तियार करना। तो बात वो चल रही थी ना कि वो सहाबी आए, वो सहाबी मदीने पाक में लाए गए जिन्होंने क्या की थी? चोरी की। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन झुक गई। पूछा क्या होगा? हमारे नबी ने फरमाया हाथ काटना होगा। मेरे भाई रिवायत में लिखा है कि जब वो सहाबी को आगे ले गए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हटते गए। वो सहाबी को लोग आगे ले जाते, हमारे नबी पीछे हटते जाते, यहाँ तक के मस्जिद नबवी की दीवार के ऊपर टेक लगा दिया। और मेरे भाइयों, जब वो वक्त आता है कि हाथ कटने का वक्त आता, हमारे नबी के आंखों से आंसू शुरू हो जाते। यहाँ हाथ कटता है, खून के कतरे गिरते हैं, और यहाँ हमारे नबी की जुबान से चीख निकल जाती है, हमारे नबी की जुबान से चीख निकल जाती। रिवायत में लिखा, हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां खड़े, कहते अल्लाह के रसूल आप रो रहे हो?
अल्लाह के रसूल आप रो रहे हो, वो सरका, उसने तो चोरी की है, उस पर आपको क्यों रोना आया? मेरे भाइयों, मदीने पाक में हमारे नबी ने जुमला कहा था, हाँ खालिद इब्न वलीद, तुमने उसके चोर होने को देखा, मैंने उसके उम्मती होने को देखा। तुमने ये देखा कि वो चोर है, मैंने देखा कि आखिर मेरा तो उम्मती है। मेरे भाइयों, जो नबी इतनी मोहब्बत करता हो, जो नबी चोर से भी मोहब्बत करता हो, मेरे भाइयों वो नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते होंगे। एक बात बताकर अपनी बात खत्म कर दो मेरा अजीज दोस्तों। एक मरतबा हमारे नबी ने कहा था, मेरी माँ बहनें भी कान खोल कर सुने, आप भी सुने। एक मरतबा हमारे नबी ने कहा था ना, एक मरतबा हमारे नबी ने कहा था, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, बहुत सारे सहाबा किराम बैठे, और हमारे नबी ने क्या कहा था, ए मेरे सहाबा अंतुम अस्दिकाई, तुम सब मेरे दोस्त हो, तुम सब मेरे दोस्त हो, वलस्तुम इख्वानी, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम सब दोस्त हो, तुम मेरे भाई नहीं। मेरे भाई और सहाबा किराम के दिल पर क्या गुजरी, सामने हजरत अबू बकर बैठे और बर्दाश्त न कर सके, आगे बढ़े, कहा मन इख्वानु का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम आपके भाई नहीं, तो भाई आपके भाई कौन होंगे, भाई आपके भाई कौन होंगे? मेरे भाई हमारे नबी ने क्या फरमाया, अल्लज़ीना यातूना बादी व युमिनूना बी व लम यरौनी। हमारे नबी ने फरमाया, अरे अबू बकर मेरे भाई तो वो है, अल्लज़ीना यातूना बादी, जो मेरी वफात के बाद दुनिया में आएंगे, व युमिनूना बी, और मुझ पर ईमान लाएंगे, व लम यरौनी, और उन्होंने कभी मुझे देखा नहीं है। मेरे भाइयों कौन हो गए भाई, कौन हो गए भाई? हम भाई है ना। मेरे भाइयों सोचो ना, उस भाई को हमने कितना नाराज किया, तो कितना नाराज किया। मैं आपसे एक बात पूछूं मेरे भाइयों, एक आखिरी बात, इसके बाद इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। एक आखिरी बात मैं आपसे पूछूं और मेरी माँ बहनों से पूछूं, मेरे भाइयों, न हमें नमाज की फिक्र है, न रोजे की फिक्र है, न ज़कात की फिक्र है, और न जाने हमने कितने लोगों का दिल तोड़ा, न जाने हमने क्या क्या गुनाह किए। और मेरे भाइयों, इतने सारे गुनाहों के बावजूद, और हमारी माँ बहनें भी सोचे, इतने गुनाहों के बावजूद जब जुमेरात का दिन आता होगा, मेरे भाइयों, हर मोमिन जो है ना, जुमेरात के दिन तो उसको सोचना चाहिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जुमा की रात में एक पल भी इबादत से गाफिल नहीं होते। जुमा की रात में एक पल भी इबादत से गाफिल नहीं। किसी ने इमाम अबू हनीफा से पूछा क्या वजह, कहा कि इस वक्त मेरे नबी के सामने मेरा नाम अमल खोला जाता होगा, मेरा नाम अमल नबी के सामने खोला जाता होगा। मेरे भाइयों, रिवायत में लिखा है कि मेरा भी नाम अमल खुलेगा। हर जुमेरात को हमारे नबी की कब्र मुबारक के पास फरिश्ते आ जाते, हमारा नाम लेते होंगे, हमारे अब्बा का नाम लेते होंगे, और कहा जाता होगा कि यह आपके फलाह उम्मती का अमल है। मेरे भाइयों सोचो ना, जब हमारा अमल जाता होगा, हमारे नबी को दुख होता होगा या सुख होता होगा। इसलिए मैंने हिंदुस्तान में भी एक बात कही और आप लोगों से भी कहता हूँ कि ठीक है, गैरों ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, अल्लाह उनको भी बर्बाद करे, जैसे उन्होंने हमें जलाया अल्लाह उनको जलाए। मेरे भाइयों, ये तो हम कुनूत नाज़िला में भी कहते हैं, हर वक्त कहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाइयों, गैरों ने शरीयत को बहुत बाद में जलाया, पहले शरीयत को हमने जलाया, तो शरीयत को पहले हमने जलाया। मेरे अजीज दोस्तों, इतने गुनाह हम करते, कभी ख्याल भी नहीं आता कि तू गुनाह करता है। मेरे भाइयों सोचो ना कि जब नबी के सामने मेरा नाम अमल खुलेगा, आपका नाम अमल खुलेगा, तो हमारे नबी के दिल पर क्या गुजरती होगी कि मेरे उम्मती में तेरे वास्ते इतना रोकर आया, मेरे उम्मती में तेरे वास्ते इतना बिलबिला कर आया, और तुझे मेरा चेहरा भी अच्छा नहीं लगा, तुझे मेरी नमाज भी अच्छी नहीं लगी। इससे मेरे अजीज दोस्तों, मैं अब अपनी बात को खत्म करूं, लेकिन इससे पहले एक वादा आप लोग कर लो मेरे अजीज दोस्तों। देखो, बाद में मुलाकात हो ना हो, आप अफ्रीका के रहने वाले, मैं इंडिया का रहने वाला, अल्लाह ने दीन की निस्बत पर जो मुलाकात करवाई है, तो दीन जिंदा होना चाहिए। आज ये तय करो, ये बात खास करके हमारी माँ बहनें घर में तय करे ये बात कि अपने बच्चों को शरीयत पर डालने की कोशिश करो। मुरू सिबियानकुम बिस्सलाह इज़ा बलगू, तो हदीस में मुरू सिबियानकुम बिस्सलाह इज़ा बलगू सबआ, कोई अमल करता है इस हदीस पर साउथ अफ्रीका में? तो सोचो ना कैसे नबी की सुन्नतों का जनाजा हमने उठाया। हदीस में आता मुरू सिबियानकुम बिस्सलाह इज़ा बलगू सबआ, जब तेरा बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंचे उसको नमाज का हुक्म दे। भाई दे रहे हम नमाज का हुक्म दे रहे 7 साल के बच्चे को, इल्ला माशाअल्लाह कुछ होंगे अल्लाह वाले, भाई दे रहे अपने बच्चे को, क्यों नहीं देता? दिल में चोर छुपा हुआ है। भाई देने का तो बहुत जी चाहता होगा, ऑर्डर करने का तो बहुत मिजाज है ना, देने का तो बहुत जी चाहता होगा, लेकिन डर ये होता होगा कि मैं पढ़ूं तो उसको कहूं ना कि पढ़, वरना बेटा कहेगा कि पहले बाजी तमें नमाज पढ़ो, है ना भाई। इसलिए शायद आपने सुना ना सुना हो, हंसते हुए आप भी उठे कि भाई कोई जवान लड़का जो है किसी के बाग में घुस गया, किसी आम के बाग में घुस गया और दरख्त पे चढ़ गया और आम चोरी करने लगा। जवान लड़का आम को चोरी कर रहा है, अब चोरी करता है, इतने में मालिक पहुंच गया। अब मालिक को बर्दाश्त होगा नहीं, मालिक आया, उसने बहुत गुस्से हुआ, कहा कि उतर नीचे, नाला कम बखत, बहुत कुछ कहा उसको।
मालिक ने उसको बहुत कुछ कहा कि नाला कम वक्त आम चोरी करता, ये वो फला फला, उसको उतारा नीचे और कहा चल तेरे बाप के पास, तुझे ले जाओ। तो उसने क्या कहा, मेरा बाप दूसरे झाड़ पर, दूसरे दरख्त पर चढ़ा हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों, आज हमारा भी यही हाल है कि बहुत जी चाहता है कि बच्चे को कहो चल नमाज में, चल कुरान पढ़, लेकिन वो बच्चा कहेगा कि बाजी पहले समय भी तो आओ नमाज में, है ना। मेरे अजीज दोस्तों, खुफ्ता रा खुफ्ता के कुनत बेदार, सोए हुए को सोया हुआ जगह नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, आज जागने की जरूरत है। आज एक बात तो तय कर लो मेरे भाई, सब तय करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह आप लोग नमाज तो पढ़ते होंगे, यकीनन आप नमाज पढ़ते होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करें। और किसके साथ? और तकबीर उला के साथ और पहली सफ के साथ। मेरे भाई एक बात बताओ, आखिरी बात आपकी बरकत से याद आ गई, भाई नमाज किसको कहते हैं? भाई नमाज के 2 ही दर्जे हदीस में, यहाँ उलमा किराम बैठे हैं, नमाज के 2 दर्जे लिखे। भाई पहला दर्जा क्या लिखा? अंता अबुदल्लाह का अन्नका तरा, पहला दर्जा, तू ऐसे नमाज पढ़ जैसे तू अल्लाह को देखता हो। भाई ऐसे नमाज पढ़ जैसे तू अल्लाह को देखता। कहा ये तो नमाज का सबसे ऊंचा दर्जा। कहा अगर ये नहीं आया तो नंबर 2 क्या? फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, अगर तू अल्लाह को नहीं देखता तो कम से कम नमाज में इतना सोच कि अल्लाह मुझे देख रहा। और तीसरा कोई दर्जा नहीं है। बताओ हमारा कौन सा दर्जा चलता है, पहला कि दूसरा? तो कौन सा चल रहा हमारा? 2 ही दर्जे है, या तो तू खुदा को देखता हो या खुदा तुझे देखता हो। लेकिन हमारी नमाज में तो न जाने कितने हिसाब किताब हो जाते हैं। तो ये 2 दर्जे में हमारी नमाज आती है, तो फिर नमाज है। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज में जान पैदा करो, नमाज में जान पैदा करो। सहाबा की मस्जिदें, सहाबा की नमाजें और सहाबा की सारी चीजें, उसमें जान हुआ करती थी और हमारी सारी चीजों में शान हुआ करती है। इसलिए मेरे भाइयों, जान को पैदा करने की जरूरत है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, और खास करके अपनी माँ बहनों से कहता हूँ, और माँ बहनों से ये भी कहता हूँ कि अपने बच्चों को भी इस लाइन पर लाए कि आज सब एक बात तय, भाई सब तय करते रहे इंशाअल्लाह, आज हम सब मिलकर तय करें कि इंशाअल्लाह जब तक मैं जीता रहूंगा मेरी नमाज उस तरीके पर होगी जैसे अल्लाह पसंद करता है। तो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत थे, वो जब नमाज पढ़ने आते थे ना, हमने देखा होगा हम लोग कैसा नमाज पढ़ने आते, मस्जिद में आया अल्लाह अकबर। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों ने लिखा है कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज पढ़ने आते तो बहुत देर तक तो नीयत भी नहीं बनती थी उनकी, बहुत देर तक नीयत नहीं बनती थी। तो किसी ने पूछा कि हजरत फौरन अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले, नीयत क्यों नहीं बनती? कहा मैं 2 चीज को पहले पक्का करता हूँ। एक तो ये बात पक्की करता हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक दे जो तुझे पसंद आ जाए, और दूसरा मैं अपने आप को ये समझाता हूँ, उन्होंने लिखा कि दूसरा मैं अपने आप को ये समझाता हूँ कि अशरफ ये तेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, पढ़ ले, उसके बाद शायद तुझे मौका न मिले। मेरे भाई, और हमारी नमाजें सोचो ना, खैर मेरे भाइयों बनाना हमारे लिए भी आसान है, भाई सब बनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों नमाज बन गई ना तो सारी चीजें बन जाएगी, खुदा की कसम, नमाज बन गई तो सारी चीजें बन जाएगी, सारे गुनाह छूटेंगे, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों नमाज बन जाए तो सारी चीजें बने। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से और आपसे एक ही बात कहता हूँ कि भाई आज इरादा करो कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे और बनाकर पढ़ेंगे। भाई पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और बनाकर पढ़ेंगे। भाई बनाकर कैसे पढ़ेंगे? भाई अल्लाह वालों से मुलाकात करो, उनसे पूछो कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, वो किस तरीके से रुकू किया जाता, किस तरह सजदा किया जाता। मेरे भाइयों नमाज बन गई तो इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी बन जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا، يا غياث المؤمنين أغثنا، يا معين المؤمنين أعنا، يا محب التوابين تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الفاسقين، إني كنت من الفاجرين، إني كنت من المجرمين، إني كنت من الآثمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ بہت بڑے گنہگار ہے مولا، بہت بڑے پاپی ہے مولا، بہت بڑے مجرم ہے مولا. اللہ ہم نے تیرے ہر قانون کو توڑا ہے مولا. اے اللہ ہم نے تیرے ہر قانون کو توڑا ہے مولا، تو ہمیں معاف فرما دے مولا. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے مولا. اے اللہ میں کسی اور کے بارے میں کیا کہوں مولا، میرا اپنا بھی یہی حال ہے مولا. ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مولا. اے اللہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مولا. اے اللہ تیری قسم مولا، اگر تیرے رحمان ہونے کا پتہ نہ ہوتا تو ہم کبھی ہاتھ بھی نہ اٹھاتے مولا. لیکن اللہ ہم جانتے ہیں تو قریبوں کا قریب ہے مولا، تو بڑا رحمان ہے مولا، تو بڑا رحیم ہے مولا. ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے مولا، ہم نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے مولا، کسی نے 70 سال 80 سال آپ کی پوجا کی لیکن مرنے سے پہلے کلمہ پڑھا. یا اللہ خواب میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہے تھے. الہ العالمین الہ العالمین ہم تو جب سے پیدا ہوئے تب سے تیرا کلمہ پڑھتے ہیں مولا. اے اللہ اپنا کلمہ پڑھتے ہیں مولا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تیرا بہت احسان ہے مولا، بہت احسان ہے مولا کہ اللہ تو نے کبھی گناہوں کی وجہ سے ہمیں کھانے سے محروم نہیں کیا مولا. کہ اللہ اے اللہ اگر تو چاہتا تو روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے سے تڑپا سکتا تھا، اللہ تو چاہتا تو پانی کے قطرے قطرے سے تڑپا سکتا تھا. اے اللہ تیرے لیے کیا مشکل تھا مولا، اللہ تیرے لیے کیا مشکل تھا مولا. اگر تو چاہتا تو ہمارے بدن سے کپڑا بھی اتار سکتا تھا مولا. اے اللہ تو ہمیں ننگا کر کے راستے میں گھما سکتا تھا مولا. اے اللہ تو ہمیں ذلیل کر سکتا تھا مولا. الہ العالمین تیرا بہت بڑا احسان ہے مولا. اے اللہ تو احسان مولا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو ہمارے گناہ کو معاف فرما. اللہ اے اللہ سب سے بڑی بات تیرے سامنے یہ کرنا مولا، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. اللہ یہی وہ مہینہ تھا جس میں تیرے نبی کی ولادت ہوئی. اللہ یہی وہ مہینہ تھا جس میں تیرے نبی کے جنازے کو سب نے اٹھایا. صحابہ کے دل میں جو وہ غم نصیب فرما، یا صحابہ کے دل میں جو طرف تھی وہ طرف ہمیں نصیب فرما. اللہ صحابہ کے دل میں جو قرآن کی جو دل میں آگ لگی تھی مولا، وہ آگ ہمارے دل میں بھی لگا دے مولا. الہ العالمین تیرے نبی کی محبت نصیب فرما. اللہ تیرے نبی کی محبت نصیب فرما. اے اللہ ربیع الاول کا جب بھی آتا ہے ہمیں وہ بات یاد آتی ہے مولا. اے اللہ وہ فجر کی نماز کے بعد حضرت علی کمرے میں چلے گئے مولا. اے اللہ حضرت علی جب کمرے پہ چلے گئے اور نبی کے پاس پہنچے تو نبی کے آنسوں کے قطرے ٹپک رہے تھے، آنسوں کے قطرے ٹپک رہے تھے. کچھ کہنا چاہتے تھے حضرت نبی اللہ تعالیٰ تو آگے بڑھ گئے. اے اللہ ہم نے روایت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. الا اللہ، الہ الا اللہ.